Welcome back. This part of video is concerned with the estimation of national income, means how the national income of a country is being estimated. So, proceeding, as I already explained in my first slides that production process, income process and the distribution process are all interdependent and interrelated to each other, and the phase starts with production, where the production takes place, to the payment made, means the income received by the factors of production, and then to the goods consumed or the expenditure made by the by other sector of the economy. So on the basis of these three stages, we can estimate the national income, or on the basis we can say that on the basis of these three stages there are three methods of national income calculation. First method is value added method on the basis of output, means the production stage, the generation income generation stage, first stage of the circular flow. Second is the income method on the basis of income stage, means the second stage of the circular flow. And the third one is expenditure method on the basis of expenditure, means the third stage of the circular flow. So proceeding, let's start with the first method, that is value added method. So under this method, the national income is calculated by summation of values of output which have been added by each producing unit of all sectors in an economy during a fiscal period of 1 year. Means under this method what you have to do, just you have to add out all the value of production. Output means production. So total production, what has been done in the economy, that the values of this total production is to be added up, and then by adding it up we can automatically get the value added, means how much the value is being added during the production process. So if we take the summation of these value which has been added, means value added, then automatically we will get the national income. So for clear understanding of this concept, you have to go through some of the components, some of the important components. The first component is value added. Value added means how much value of production is being added. Value of output is different thing, value added is different thing. Value of output means total production. Okay, after production what is the value of total output, that is value of output. But value added means कितना ऐड किया गया है, how much is added, that is value added. So addition of value of raw materials by a firm during a production process. So the formula you can see, value added is equal to value of output minus intermediate consumption. Intermediate consumption का सीधा मतलब raw materials. So हमने जितना प्रोड्यूस किया और हमने कितना रॉ मटेरियल्स यूज़ किया, मतलब रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम अपना प्रोडक्शन करते हैं. तो मान लो मेरे रॉ मटेरियल का सारा खर्चा बनता है 5,000 और मैंने जो रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश्ड गुड्स बनाया उसका दाम बनता है 7,000. तो बीच में मैंने कितना ऐड किया, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरा सिर्फ 2,000 का है. मेरा कंट्रीब्यूशन टोटल 7,000 का नहीं है, क्योंकि उसमें से 5,000 ऑलरेडी रॉ मटेरियल का कंट्रीब्यूशन है, जिस रॉ मटेरियल को किसी और इंसान ने किसी और यूनिट ने बनाया होगा. तो वो 5,000 का रॉ मटेरियल उसका कंट्रीब्यूशन है, मेरा नहीं है. मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 2,000. सो ये जो खुद का कंट्रीब्यूशन है, मीन्स मैंने कितना ऐड किया है इकोनॉमी में, दैट वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सो मेरे एग्जांपल में मैंने कहा कि मेरा जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसका 7,000 है, और इंटरमीडिएट का जो सामान रॉ मटेरियल का जो मनी है, एक्सपेंस है, उसका 5,000 है. तो मेरा वैल्यू एडेड बनता है 2,000. मतलब बीच में से मैंने कितना अपनी तरफ से मैंने कितना ऐड किया, दैट इज़ वैल्यू एडेड. देन नेक्स्ट कंपोनेंट होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब मेरा टोटल प्रोडक्शन कितना है. So it is the market value of all the final goods and services produced during one fiscal year. Value of output निकालने का फॉर्मूला है सेल्स. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. या तो ये एक फॉर्मूला है, ओके, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस एंड चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग.
तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक क्यों लिया गया है, क्योंकि प्रोडक्शन, सपोज मैंने कहा कि मेरा टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 7000, तो 7000 में से मान लो मेरा 6000 का बिका, मार्केट में बिक्री हुआ, और बाकी 1000 मेरा अभी भी स्टॉक में रह गया है। सो मेरा 7000 कैसे निकला, 6000 सेल्स का प्लस 1000 स्टॉक का। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है चेंज सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एंड intermediate consumption means consumption or use of intermediate goods in production process, or in simple तरीके से we can say that it is the value of raw materials। क्वेश्चन में जो है तुम्हारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट भी दिया रहता है, कभी कभी रॉ मटेरियल के हिसाब से भी दिया रहता है। इसका कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ वैल्यू एडेड के लिए है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए है। अब रिपीटिंग, वैल्यू एडेड इज सेपरेट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेपरेट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से, एंड वैल्यू एडेड निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस रॉ मटेरियल, नहीं तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। Next we come to the steps in value added method. The first step is identify the production units in all the sectors. इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स है, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या कॉटेज इंडस्ट्री हो या बिग लार्ज या मल्टीनेशनल कंपनीज हो, ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स को हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है होता है। नेक्स्ट, अच्छा इसके लिए क्या है, GVA मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, जो मैंने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में समझाया था वैल्यू एडेड, सो ये VA उसी का शॉर्ट फॉर्म है। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर इन एन इकोनॉमी। सेकेंड है, ये जितने भी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स के जितने भी GVA MP है उन सबको हमें ऐड करना होता है। इन सारे GVA MP को अगर हम ऐड करेंगे तो मुझे मिलता है GDP MP। सो GDP MP सेकेंड स्टेप में दिया गया है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उन सबको ऐड करना होता है टू गेट GDP MP। सो GDP MP मतलब ग्रॉस, GDP MP कैसे निकलेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द सेक्टर्स आर टू बी एडेड। GVA MP of primary sector प्लस GVA MP of secondary sector प्लस GVA MP of tertiary sector, तीनों को मिलाकर बनता है GDP MP। एंड देन फाइनली हमें क्या करना है, नेशनल इनकम निकालने के लिए हमको NNPF से निकालना है। सो GDP MP से जब हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, NFIA प्लस करेंगे और NIT माइनस करेंगे, देन वी गेट NNPFC। NNPFC ही नेशनल इनकम होता है। ओके, सो वैल्यू एडेड मेथड में करना क्या है, क्वेश्चन जब दिया रहेगा उसमें फॉर्म A, फॉर्म B, फॉर्म 1, फॉर्म 2 इस तरह से दिए रहेंगे। उन सारे फॉर्म्स के वैल्यू एडेड का हमें निकालना है। फॉर्म A का वैल्यू एडेड कितना बनता है, फॉर्म B का वैल्यू एडेड कितना बनता है, उस तरह से सारे फॉर्म्स का वैल्यू एडेड निकालना है। उस वैल्यू एडेड को, उन सारे फॉर्म्स के वैल्यू एडेड को हमें प्लस करना है। प्लस क्यों करना है, क्योंकि उसको प्लस करने से हमको GDP MP मिलता है। सो GDP MP से हम डिप्रिसिएशन NIT माइनस करते हैं और NFIA प्लस करते हैं टू गेट द नेशनल इनकम NNPFC। ठीक है, सो वैल्यू एडेड मेथड में को करने के लिए ध्यान देना पड़ता है हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए और वैल्यू एडेड के लिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म A एंड फर्म B। एक निकालना है, B में निकालना है GDP MP और C में निकालना है NVA FC। क्वेश्चन दिया होता है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है +2 के CBSE बोर्ड एग्जाम्स में। सो वैल्यू एडेड बाय फर्म A, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में फॉर्म A और फॉर्म B दो ही फॉर्म के बारे में लिखा हुआ है। अगर C, D, E, F जितने सारे फॉर्म रहेंगे क्वेश्चन में, उनको उतने सारे फॉर्म्स का वैल्यू एडेड 1 by 1 निकालना होगा। So value added by form A, what is the formula of value added? It is sales plus change in stock. Sales plus change in stock मतलब value of output. So value of output minus intermediate consumption. Value of output निकलता है sales plus change in stock से। So sales by firm B मतलब sales by firm A का जो भी सेल है उसके साथ हम चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म A ऐड करेंगे। पहले टू जो है सेल्स बाय फर्म A और चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म A, इन दोनों को ऐड करके हमें मिलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। इससे हम माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, हमारे रॉ मटेरियल्स हम परचेज करते हैं। सो जितने भी तरह के हमारे परचेजेस हैं वो सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगा।
सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करना होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. सो दैट्स वाई परचेजेस बाय फॉर्म ए हैज़ बीन सब्ट्रैक्टेड हियर. Okay, so sales by firm A plus change in stock of firm A minus purchases by firm A. तो टोटल बनता है 200 crores. So gross value added by firm A बनता है 200 crores. Second, value added by firm B. Similarly, firm B का भी तुमको value of output minus intermediate consumption करना है. Value of output निकलेगा sales plus change in stock में. तो सेल्स बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट, बी ने गवर्नमेंट को सेल किया है, बी ने हाउस होल्ड को सेल किया है, तो दोनों सेल को हम प्लस करेंगे. देन क्लोजिंग स्टॉक निकलता है, सॉरी चेंजिंग स्टॉक निकलता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से. तो हमने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को हमने माइनस करके चेंजिंग स्टॉक निकाला है. माइनस परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए. फर्म बी ने कितना परचेज किया है उसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि परचेज ही मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या कहा जाता है. सो वैल्यू एडेड बाय फर्म बी का टोटल निकलता है 260 crores. सो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए 200 crores, value added by firm B 260 crores. Then coming to the next section of the question, that is GDP MP. अब यहाँ पे दो ही फर्म है तो दो ही फर्म के वैल्यू एडेड को हम प्लस करेंगे. दोनों फर्म के वैल्यू एडेड को हम जब हम प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा GDP MP. ये जो है तुमको ध्यान रखना होता है कि सारे को जब हम प्लस करते हैं तो हमको GDP MP मिलता है. सो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बनता है 200 crores, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी बनता है 260 crores. दोनों को जब हमने प्लस किया तो मेरा आया 460 crores. तो ये 460 crores है मेरा GDP MP. और GDP उसके बाद अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है. एक्चुअली मेरे स्लाइड बनाने में प्रिंटिंग मिस्टेक है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. सेक्शन सी में NVAFC है, एक्चुअली वो NVAFC नहीं, वो NNPFC होगा, which shows your national income. So national income मतलब NNPFC. So I repeat, यहाँ सेक्शन सी में NVAFC, क्वेश्चन में जो NVAFC है वो NVAFC ना होकर वो NNPFC होगा. सो NNPFC अगर निकालना है तो हमको GDP MP जो पहले निकला हमारा 460 crore, उससे हम माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन एंड माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स. ये दो जब हम माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा 265 crores. फिर से एक बार ध्यान दो, ये जो 265 crores है यहाँ आंसर में NVAFC ना होकर ये NNPFC मतलब नेशनल इनकम होगा. सो आई थिंक इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को आसानी से बुक्स में मिल जाएंगे, इंटरनेट में भी मिल जाएंगे. एंड आई विल एडवाइज यू टू प्रैक्टिस फॉर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस.